Good evening, viewers. Welcome once again. We have Anmol Agnihotri. She has been recently cleared for Navy pilot entry through INET entry, and she has been cleared for meteorological reconnaissance. She has cleared the CPSS entry also. Her SSB was on conference was on 15 December 2020 from 12 SSB Bangalore. But this interview was delayed because she wanted the interview to be taken after the merit list has come. So I'm happy to announce that she has cleared not only the SSB, she has cleared the CPSS medicals, and now she is reporting on 27 June 2021 at Naval Academy, Erimala. This was her third attempt. First time she was conference route for FCAT, second time screen route. She is from Ghaziabad. First, I'll request Anmol herself to introduce. Before that, Anmol, first of all, you're looking very smart in this dress. Thank you so much, sir. Yeah, and congratulations for your outstanding success through the naval entry, INET का. And pilot बनने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, and you cleared everything, and 27th को you're going to report on the Naval Academy. So before we start, I'll request you to kindly introduce yourself, Anmol. So I'm Anmol Agnihotri. I have completed my graduation from Harcourt Butler Technical University in Kanpur in the year 2020 itself from electrical engineering branch, and I got recommended for Navy pilot entry. I gave the exam of INET, and my SSB was in the year of 2020 in the month of December, last December itself. And currently, so I cleared all the tests. I cleared the CPSS, PABT. I cleared the medicals, and fortunately, I have received my joining letter in the May end. And so, in my family, talking about my family, I have two younger siblings along with my parents. So my father is currently working in Northern Railways as senior section engineer, and my mother is a teacher. And so my younger siblings, talking about my younger siblings, my younger sister is also preparing for SSBs through NCC entry. She has got C certificate in NCC. And so my younger brother, he is in 12th, and he's also preparing for ND exams and currently 12 boards which have got cancelled. But yeah, that's okay. In fact, I know your sister. In fact, you only got her enrolled for the composite batch, SML and SSB both, whereas you yourself did only the SSB batch. So that I'll ask you separately. Now, can I just, you've done your electrical engineering from that college. Which college you said? So Harcourt Butler Technical University. It is at Delhi. In Kanpur, sir. Acha, Kanpur mein. Can you just tell about your 10th and 12th, where did you do and what was your performance there? Yes, sir. So in my 10th standard, I completed my 10th standard from Holy Child School in Ghaziabad, and my percentage in boards was 94.8. And so my 12th standard, I completed my 12th standard from CBSE board, which is Delhi Public School in Ghaziabad itself, and my percentage in boards was 92.8%. 92.8. So that was a consistent performance for 94.8 and 92.8. And what was the performance in the engineering, electrical? Yes, sir. Yes, sir. So in the first year of my college, my percentage was around 79% average percentage. And so in second year, it was around 73%. And so in third year, it was 77%. And in final year, it was around 79%. Oh, so my average was around 77% in my college. That's a fairly high average. And you were placed also in IBM? Yes, sir. I was campus placed. And you joined also? Yes, sir. I joined it. Can you just tell what was your experience? What was your experience at IBM, and you left it? You told me I think you left it. What was that experience, and how did they ask you for compensation for the training and all those things that they have given the IBM? So actually, after I got recommended, it was very uncertain. Everything was, it was a confusion whether I should join IBM or I should not. I should wait for the merit, how confident I am. But then, sir, I joined it for a backup plan if the merit gets delayed or something like that. So I joined. I wanted to take some experience of the corporate life also. IBM is a good company. It's a giant tech company. So yes, I joined it in January, and I took the training for 3 months. My job role was full stack developer. Web development. What was the web development? Yes, sir. It was related to web development. Okay. Full stack web development. Okay. So it was a very happy experience. I enjoyed it working from home,
and then so after 3 months I decided that I want to I want to start working on my fitness, because I was getting this intuition, and also also it was time when merit should have come. So I thought that I should resign. Okay. And then I started working on my fitness and giving time to my family, and also working on my mental strength, that I should Okay. feel prepared for So for training. 3 months you worked with IBM, so they would have put you through some training module and orientation basically. Yes, sir. Okay, that's fine. And what is your mother doing? You did not mention about your mother. Yes, sir. Currently, she is working as a teacher, sir, in chemistry subject Achha. in English medium school nearby. In Ghaziabad itself. Yes, sir, in So Ghaziabad. tell me, your father and mother both are from a civilian background. है ना? मतलब father is in railway, mother is a teacher. What was the motivation to join the armed forces? And Kanak is also there. तुम्हारी sister भी है, उसका तो फिर भी समझ में आता है. She's a हाँ, sir. NCC certificate holder. अभी तुम्हारा भाई भी तुमने थोड़ी देर पहले बताया कि मतलब when you were speaking to me before the interview कि he is also planning for NDA. मतलब एक घर से Yes, sir. 2 बेटियां और एक बेटा, तीनों को आर्म फोर्सेस में भेजने को माँ बाप तैयार है. So where is this motivation coming from? Yes, sir. So actually, when I was younger, nearby my house only, there's an uncle. He's my father's friend, and we used to go to air shows, Air Hindon shows. Base. Yes, Acha. sir. Air Force Base at Hindon. It's in the it's near Ghaziabad only. So we used to watch all the planes and all the aerobics that they were doing. So I got really inspired, and at younger age itself, it got planted. This dream got planted in my head कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, मुझे भी पायलट बनना है. So मैं जब छोटी थी सर, तो मैंने पायलट वहाँ पे जो थे उनसे बात भी करी थी, तो they said कि yes you can become, and it got stayed in my mind, but it got dull while I was growing up, and all the career choices and different things were happening. So in third year, when I got a bit more serious about my career, like what I want to do further, should I go towards the technical stream, or is there anything else I want to do? So at that time only, so Avni Chaturvedi, she is the first. Avni Chaturvedi, the fighter Yes, pilot. sir. Yeah, Yes, yeah. sir. So From the news Bihar, I came think. out. Yeah. Yes, sir. So that news came out when I was in third year, I guess. Yeah. So that desire, so it got surfaced. Yeah, there were 3 lady officers first batch में से she was one, Avni, I remember. Yeah. So sir, वही कि अब सर एक picture से आ गई कि yes, this can happen. So I started searching कि what are the options. AFCAT, I searched for AFCAT exam. Okay, through AFCAT, women can become pilots, and there was one exam, INET. So this started, and I started working on different things. So मैंने जाना कि SSB का प्रोसीजर क्या होता है. So different प्रोसीजर है, OLQs है, इतना लंबा प्रोसीजर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है. ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा है और डिटेल्ड है. लेकिन सर फिर जब मैंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया और अपने फिटनेस पे सबसे पहले से वर्क करना स्टार्ट किया, आई वाज अराउंड 67 kgs. आई वाज 10 kg ओवरवेट. अच्छा. मैंने मेडिकल क्राइटेरिया चेक किया था, तो आई वाज 10 kgs ओवरवेट. Okay. सो आई डिसाइडेड What is your height? अब तो कम करना height पड़ेगा. कितना है? तो 5'5". 5'5". Okay. 5'5" में कितना होना चाहिए? 5'5" में कितना होना चाहिए, क्या बोलते हैं, आइडल वेट? So ideal weight is 56 to 57. Okay, और तुम्हारा कितना था? 60? 67 था. Almost. 67 था. Okay, हाँ, चलो 10 आगे किलो बढ़ो. ज्यादा था. हाँ. हाँ सर, तो मैंने फिटनेस पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने भागना स्टार्ट किया. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कॉलेज में मैं पार्ट कर ही रही थी, तो माय पर्सनालिटी वाज गुड. सर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. मैं इवेंट्स जो होते हैं कॉलेज में, होस्टिंग इवेंट्स एंड एंकर करना, कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट इवेंट्स को. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, टेकिंग इनिशिएटिव इन दीज एरियाज. मतलब होते तो रहते थे, मन भी करता था चलो ले लेते हैं, बट वो फील नहीं आता था. पीछे का प्राइमरी मोटिव था क्योंकि एसएसबी में जाना था. हाँ सर, एसएसबी के अराउंड में अलाइन करना चाह रही थी अपनी पर्सनालिटी. और धीरे धीरे जब मैंने और पढ़ा, फिर नई हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स मैंने थोड़ी और फोकस करी. कि पहले डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ते थे, बट अब मैं थोड़ी फोकस जॉनर जैसे स्पिरिचुअलिटी, भगवद गीता इज द बुक. सो आई हैव रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट बुक, भगवद गीता. एंड और भी बुक्स हैं, एंड साइकोलॉजी की बुक्स हैं, एंड सेल्फ हेल्प जॉनर है. तो ये मेरा मेन जॉनर बन गया. साइकोलॉजी का बुक मतलब ग्रेजुएशन के लेवल में पढ़ते थे?
नहीं सर, जैसे जॉर्डन पीटरसन है, ही इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उनकी वीडियोस काफी इंस्पायरिंग होती हैं, और कैसे हम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग को जो साइकोलॉजी की है, पैटर्न्स और बिहेवियर्स कैसे लिंक करते हैं, उसको समझकर हम अपनी पर्सनालिटी ग्रूम कर सकते हैं. अच्छा. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड सर रिटन के जो एग्जाम होता है सर, एफकैट का एग्जाम होता है, उसके लिए मैंने एक बुक खरीदी थी, अरिहंत की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन का. हाँ सर, अरिहंत की. दैट इज द बेस्ट बुक आई थिंक सो फार. एंड उसके थ्रू मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है सारे एग्जाम्स में एफकैट के. और आईनेट का एग्जाम जो था, मैंने ज्यादा कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया था उसके लिए, बट एफकैट की मेरी क्योंकि थी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन. तुम्हारा एफकैट का स्कोर कितना था? सर फर्स्ट एग्जाम में इट वाज अराउंड 177. 177. एंड सेकंड में? तब 189. एंड थर्ड में 192. 192. एंड लास्ट टाइम का कितना था उनका जो कट ऑफ, क्योंकि इट इज इन 150s, अराउंड 155 से 150 से 155 की. तो मतलब ये तो यू डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज विद दिस हाई ओआर के साथ में ना. यस सर. मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, सो दैट्स ओके. So 177, 199, 192, correct? Yes, sir. Okay, you mentioned Bhagavad Gita. What made Yes, you sir. read Bhagavad Gita and how did that help you? Sir, actually, मैंने स्टार्ट की थी क्योंकि सर आई वाज इंट्रीग्ड. आई वाज ऑलरेडी रीडिंग भगवद गीता सिंस 10th स्टैंडर्ड, बट इतना रिलेटेबल नहीं लगता था. मतलब मैं रीड करती थी क्योंकि माय पेरेंट्स यूज्ड टू रीड आल्सो, सो बट इतना रिलेटेबल नहीं लगता था. लेकिन कॉलेज में व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय सेल्फ, तब जब मैंने वो रीड करा और साथ में ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, जैसे कर्म के ऊपर कृष्ण जी बात करते हैं कि आप इन एक्शन कैसे कर सकते हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म होता है सर. तो कैसे हम कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं कर्म और विकर्म के थ्रू, बट जो इन एक्शन है थ्रू डिवोशन एंड थ्रू भक्ति, हम कैसे डिटैच कर सकते हैं अपने आप को इन अ न्यूट्रल वे, इन अ हैप्पी वे. अच्छी लाइफ कैसे हम जी सकते हैं अपने सेंसरी प्लेजर्स को. या गुड. हाँ सर, अपने सेंसरी प्लेजर्स पे ध्यान न देके कैरेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ओके. No, very nice to listen a 22-year-old person interested in reading Bhagavad Gita. And चलो मैं उसमें एक वो है ना, फल किए जा क्या कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. What do you understand with that? हाँ सर. Since you mentioned that, so, कर्म, yes sir. या कर्म किए जा फल. हाँ सर, कर्म करना है मतलब. हाँ सर जैसे मैं ये मानती हूँ सर, जैसे थर्ड मेरा रिकमेंडेशन था, मैंने सारी तैयारी कर ली थी, 100% दे दिया था मैंने, सब कुछ सीख कर. बट मैं कह सकती हूँ वो 90% ही था रिजल्ट का. 10% इज स्टिल नॉट इन माई हैंड. 10% is still uncertain, so I cannot do anything in that. I can just give 100% in that 90% and let God take care of it. बिल्कुल, मतलब whatever effort you put, effort आपके हाथ में है. When the efforts are right, when the direction of your efforts are right, the consequence has to follow. But there is always that 1% possibility कि सब कुछ करने के बाद भी that factor may not work for you. So that's perfectly fine. So बहुत अच्छी बात है, क्योंकि people misunderstand this कि कर्म किए जा फल की इच्छा करो, मतलब कि काम करते रहो गधे की तरह. नो, फल विल कम, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस. सो चलो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर आपको अच्छा लगा. नाउ टेल मी अनमोल, तुम्हारा ये सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में यू वाज कॉन्फ्रेंस आउट एंड स्क्रीन आउट. कैन यू टेल व्हाट हैपेंड, हाउ वाज योर एंटायर प्रिपरेशन फॉर एसएसबी, कैसे आया, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ. एंड देन यू जॉइंड आफ्टर द सेकंड स्क्रीन आउट के बाद यू केम टू मी. AFOSOP. So how did you come to AFOSOP, मतलब कैसे मेरे बारे में पता चला वो, मतलब first you explain पहला वाला, and then coming to AFOSOP, how did it help you to gain more clarity, and थोड़ा उसके बारे में बताना. Your first two attempt, the way you handle your failures and the way you carried out certain degree of, I'm sure कुछ एनालिसिस किया होगा. सिंस यू गॉट भगवत गीता पढ़ने का कर्मा थ्योरी जानते हो, तो आई लाइक टू नो कि क्या था, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट टू. So my first SSB was last year in January. Okay. In Varanasi, AFSB Varanasi. Okay. So I was confident कि मैंने सब पढ़ लिया है, मेरे को पता है प्रोसीजर SSB का, इतने टाइम में इतनी स्टोरीज लिखनी है और
इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे और जीटीओ में ये टॉपिक्स होते हैं मेनली, Yeah. और ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से कर लिया था मैंने। हाँ हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी जो है सर, जैसे आप यूज करते हैं ये एनालॉजी कि गाड़ी तो बाहर से चमक रही थी लेकिन इंजन वाज नॉट दैट क्लियर। मतलब जैसे माइंड है सर हमारा, जो अच्छा अच्छा पार्ट है वो सब मेरे को पता था, लेकिन जो जो कचरा टाइप भरा होता है वो उसको मैंने साफ नहीं किया था। हाँ हाँ सर, तो फिर कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड प्रिपरेशन थी। अच्छा हाफ हार्टेड प्रिपरेशन थी और उसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि सर एसएसबी खुद में ही इतना डिमांडिंग है कि वहां जाते ही थोड़ा होश होश में आ जाते हैं हम लोग कि ये या क्या चल रहा है, ये तो तैयारी नहीं की, ये क्या करेक्ट। पूछ लिया इन्होंने। मैं उसको विशफुल तो तैयारी फिर मैं वो विशफुल बोलता हूँ, हे भगवान मुझे ऑप्शन बना दो, सांप को दूध पिला दूंगा, हाँ, पिला दूंगी। ऐसा कि मतलब आंख पे पर्दा रख के चल रहे थे कि ये तो ये हमारे हिसाब से होगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक डिमांडिंग प्रोसीजर है और अंदर से स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो सर मुझे लगा कि जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई, मैंने अपनी परफॉर्मेंस डिटेल में एक पेज लिखा भर के कि ये क्वेश्चन सर ने पूछे, जीटीओ में ये टॉपिक्स मिले मुझे और मैंने क्या परफॉर्म किया, मैंने कैसा परफॉर्म किया, सब कुछ डिटेल में भर के लिखा अच्छे से। हाँ फिर जब मैंने अपने आप को एज अ ऑब्जेक्टिवली मैंने थर्ड पर्सन व्यू किया कि ये मेरे इंटरव्यू सर जो थे उन्होंने मेरे को कैसे समझा होगा, ये क्या मैं दिखा कर रही हूँ। तो फिर सर मुझे ऐसा पता चला कि तीनों चीजें थी, जो इंटरव्यू था, जीटीओ था और मेरा साइकिल था, वो तीनों अलग डायरेक्शन में थे। मतलब मैंने इंटरव्यू में जो बताया वो शायद साइकिल में नहीं आया, और जो मैंने साइकिल में बताया वो शायद जीटीओ में नहीं आया, और जीटीओ में वो इंटरव्यू में नहीं आया। मतलब तुम्हें तो ऐसा इन्फ्लुएंस क्यों निकल रहा है कि मतलब वेरिएशन था, तुम्हें ही क्यों ऐसा लग रहा है कि जो तुमने साइकोलॉजिकल टेस्ट में बोला, जो इंटरव्यू में किया, जो जीटीए में, तुमको ही लग रहा है कि वो अलग अलग था? हाँ सर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, एक अच्छा, क्लैरिटी नहीं थी। मतलब जब प्रोसीजर क्लैरिटी नहीं होती, प्रोसीजर पता था? प्रोसीजर पता था सर ऊपर प्रोसीजर ऊपर कहाँ से, से पता था? सब बुक्स वीडियोस ऑनलाइन ओके एसएसबी क्रैक्स। ओके, सो एसएसबी क्रैक मतलब प्रोसीजर पता चल गया, हाँ सर। लेकिन हाँ उस सर, प्रोसीजर के ऊपर की तैयारी नहीं किया, तो हाँ मतलब डेप्थ नहीं थी, और डेप्थ डेप्थ नहीं नहीं थी था, और एक कॉन्फिडेंस था, ऊपर से। हाँ सर, आई कैन कॉल इट अ सुपरफिशियल या कॉन्फिडेंस, ऊपर ऊपर क्योंकि ऊपर से गाड़ी था। चमक रही है। हाँ सर, अच्छा चलो अच्छा गुड, लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन स्मार्ट लग रहा है हाँ। अंदर से सर वो बातें नहीं है, ओके, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। दोनों मतलब दिस वाज द सेम एक्सपीरियंस इन बोथ? नहीं सर, सर एक्चुअली फर्स्ट में फिर मैंने एनालाइज किया कि जीटीओ सेक्शन में व्हाट आई डिड वाज आई वाज कोऑपरेटिंग, आई वाज नॉट गिविंग आइडियाज और आई वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली। जैसे सर आप बोलते हैं कि या जीटीओ का जो परफॉर्मेंस है वो हमारा रियल लाइफ में हम जैसे फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो वहां पे नहीं था। आई वाज अ पैसिव, I can say I was a passive मेंबर इन द ग्रुप? participant in the group. ओके ओके, Yes, sir. I was cooperating. हाँ मतलब काम भर के लिए मैं मतलब बोल रही थी, but फिजिकल लेवल पे काम कर रहे थे, बट हाँ sir. इंटेलेक्चुअली यू आर नॉट इन्वॉल्व? Still actually I was not involved. ओके, Yes, sir. मतलब क्योंकि मुझे प्रोडक्ट उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं पता था सर, नहीं जीटीओ का पता। ओके, सिग्निफिकेंस ही नहीं पता था कि जो वहां पे एसएसबी है वो एक्चुअली रियल लाइफ का ही प्रोजेक्शन है। मतलब वहां पे जो मैं लैग कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैं रियल लाइफ में लैग कर रही हूँ। जो कॉज है वो हमारी रियल लाइफ में और या इफेक्ट है वो या एसएसबी में हमें दिखेगा ऐसा। तो इनिशिएटिव मुझे पता चला कि इनिशिएटिव वाज लैकिंग इन माय जीटीओ। सो इन माय रियल लाइफ आई इंट्रोस्पेक्टेड वेयर आर द एरियाज आई कैन टेक इनिशिएटिव करियर में, चॉइसेस में, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन सो इंटरव्यू में आई कैन से कि क्लैरिटी नहीं थी, इंट्रोस्पेक्शन जो कि सबसे जरूरी है, आई डिड नॉट डू मच इंट्रोस्पेक्शन। जबकि मैंने अपनी उसमें लिखा हुआ था सर हॉबीज में कि आई राइट डायरी, मतलब इन डायरी, तो डायरी राइटिंग मैं करती हूँ, बट इंट्रोस्पेक्शन की कमी थी, नहीं किया तो था। सर वो मैच ही नहीं हुआ पीआईक्यू अच्छा, से। हाँ और सर मुझे लगता है साइकी में सर माय फोकस वाज ऑन मेकिंग द स्टोरी लुक गुड, बाय नॉट मतलब नॉट मेकिंग योरसेल्फ, हाइपोथेटिकल। अपने यस आप को सर। टच नहीं किया, स्टोरियों को बाहरी रूप से ठीक करने का हाँ कोशिश सर। की। हाँ कैसे, सर। कैन यू एक्सप्लेन कैसे किया? आई वांट टू नो, सर यस मतलब मैं सर। जानना चाहता हूँ अनमोल ने क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मैं स्टोरियों को अच्छी करने की कोशिश कर रही थी, खुद पे काम नहीं किया? व्हाई डू यू फील लाइक दैट अनमोल? सर मैंने एक स्टोरी लिखी थी, मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया कि अ पर्सन वाज होल्डिंग सम अदर पर्सन फ्रॉम बिहाइंड। मतलब ऐसा लगा कि ये कोई थीफ है, रॉबर है, ऐसा कुछ लग रहा था उसमें। तो मैंने उसमें ऐसा बताया था सिचुएशन कि दिस पर्सन वाज गोइंग फ्रॉम होम टू कॉलेज, मतलब कॉलेज से घर जा रहा था, एंड फ्रॉम बिहाइंड सडनली अननोन पर्सन एनोनिमसली कम्स एंड ही ट्राइज टू रॉब दैट पर्सन।
अच्छा। मतलब मैं एक इवेंट बना रही थी और फिर उसने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया, ही हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ मार्शल आर्ट्स, क्योंकि मेरे को भी मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस था, तो सर ऑन स्पॉट वही आया मुझे याद। अच्छा। तो तो बट एंड मैंने ऐसे किया हाइपोथेटिकली कि उसने अपना एक एकेडमी खोल लिया, फिर उसको मतलब वो मिनिस्टर ने, पीछे से उसने ऐसे किया तो एकेडमी खोल दिया। सर वो डिफेंस का उसे आता था मार्शल आर्ट्स, उसने देखा कि और लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसने मतलब डिफेंस की अपनी उसकी डिफेंस कह रही मार्शल आर्ट्स की एकेडमी खोली, और मतलब उसको मिनिस्टर ने पीछे से उसे, किसी ने बटुआ छीनने का कोशिश किया, एंड हुआ मार्शल आर्ट की एकेडमी खोलने से, हैं? हाँ सर। So that's the तो level आई, of fantasy, hypothetical, yes sir, hypothetical. it was hypothetical, Yeah. I totally agree, except it was hypothetical. So Mm. sir I started एनालाइज ही किया सर मैंने सेकंड एसएसबी तक, ऐसे कुछ मैंने अ, छेड़ा नहीं अपनी प्रिपरेशन को बाहर Mm. बाहर से, ऊपर Mm. से एनालाइज ही किया Mm. कि ये तीन चीजों में से। और वैट में आई वाज राइटिंग मोर ऑफ फैक्ट्स, Mm. देयर वाज नॉट मच क्रिएटिविटी, Mm. बल्कि मैंने अपनी हॉबीज में लिखा था कि मुझे रीडिंग और पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग Mm. पसंद है और रीडिंग Mm. पसंद है। देयर वाज क्रिएटिविटी, देयर वाज एक्टिविटी इन माय पीआईक्यू, बट इन माय स्टोरीज एंड इन माय मतलब पीआईक्यू में वर्क्स बहुत अच्छा अच्छा लिखा था, बट एक्चुअली वहां पे गैप था। देयर वाज अ गैप, यस There सर। was a gap. Okay. एंड माय एसडी आल्सो सर, सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी मैंने बहुत पॉजिटिव लिखा था, कोई वीकनेस मैंने मेंशन नहीं करी थी, अच्छा। क्योंकि मैंने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया था। वीकनेस से ये तो मुझे लग रहा था कि नहीं, स्ट्रेंथ कहाँ से लेके आए? सर वो स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि दैट वाज हाफ हार्टेड, हाँ, अगेन फाटेड मतलब हाफ हार्टेड थी। एक्चुअली। ओके, इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था, वो लड़का बोलता सर मैं जूम से लिखता, ये अपना गूगल करता था क्या क्या स्ट्रेंथ लिखना हाँ तो वो करके। है बोगस वर्ड जो जाते हैं सर वो। So he will look into the words good good अच्छे, उसको लाके अपने एसडी में लिखता है। By writing good SD, अनमोल, you don't become good. When you become यस good, your SD का good होना एक natural वो है। Anyway, how serious were you in the first attempt? Even though your preparation में थोड़ा सा गड़बड़ था, but recommend होने का मन पूरा था। सर जाने से पहले हाँ आई वाज कॉन्फिडेंट, बट सर एक दिन पहले मुझे लग गया था कि 100% तो नहीं, मतलब फील गड़बड़ नहीं है। आया अंदर से। क्यों ऐसा लगा कि नहीं होने का चांस है करके? सर क्योंकि मैंने जब घर रूम पे वापस आते हैं तो एनालाइज करते हैं कि इंटरव्यू में सर ने जो क्वेश्चन पूछे क्या लूप होल्स रह गए, तो हम्म। हाँ मैंने पता किया सर, अपने आप को ऑब्जर्व किया मैंने वहीं पे एसएसबी सेंटर पे ही। हम्म। तो आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं कुछ तो ओके। कमी है, कुछ तो ये कमी जो है। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड में हाउ इम्पोर्टेंट वाज करंट अफेयर्स का पार्ट, मतलब वाज आपसे पूछा गया था उसके लिए? और अगर पूछा तो आपने कैसे प्रिपेयर किया था तीनों आइटम में, मतलब करंट अफेयर्स वाला पार्ट? करंट अनलाइक अफेयर्स तो सर अनलाइक इन द सिविल सर्विसेज में वेयर द इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड उसके ऊपर भी योर एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, आर्म फोर्सेस में उस लेवल का नहीं है, तो भी यू हैव टू बी अवेयर। सो यस हाउ सर। डिड यू फाइंड योरसेल्फ इन दैट डोमेन एंड कैसे आपने अपने आप को उसके लिए तैयार किया था? सर करंट अफेयर्स के लिए आई फाउंड न्यूज़पेपर एज द बेस्ट सोर्स Which फॉर newspaper करंट है? अफेयर्स। कौन सा? इंडियन अच्छा, एक्सप्रेस सर। मतलब आप एसएसबी से पहले से ही करते थे इसको या? यस सर। अच्छा। Yes, ओके। sir. Sir, before SSB also and during the college also, I was reading newspapers. I made it a habit. It was a very healthy habit because I was also working on my English. I was also working on my expressions and writing and opinions. So current affairs के लिए that was the best source. So newspaper is the best source. And so कुछ YouTube channels हैं जो जैसे अच्छे videos बनाते हैं sir. जैसे So जैसे खान sir की या एक खान जीएस खान खान एकेडमी, GS Academy. बिहार Yes वाले, sir. आई आल्सो फॉलो हिम। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट ऑल व्यूअर्स कि मतलब ब्यूटीफुल वीडियोस ही मेक्स। आई थिंक ही हिमसेल्फ वाज एन एसएसबी एस्पिरेंट, को मेडिकल मेडिकल हुआ था करके बता रहे थे। सो दैट चैनल आई एक्चुअली रेकमेंड टू माय स्टूडेंट्स। और वो बहुत भोजपुरी भाषा में थोड़ा मिक्स बोलता है, बट वेरी नाइस एंड ही इज वेरी, मतलब इतना नॉलेजेबल है। बहुत आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम, मतलब बीइंग आर्मी मैन I get a lot of information from there. So I'll request you all viewers, जीएस खान रिसर्च एकेडमी करके एक चैनल है यूट्यूब में, खान सर करने से भी आता है उसको। राइट नाउ ही इज इनटू सम कंट्रोवर्सी, उनके नाम के चक्कर में पता नहीं कुछ हो रखा है। Okay But sir. I'll recommend you to all viewers who are there to watch that video. It will tremendously help you. Yeah, Yes and sir. और सर सर न्यूज़पेपर एंड सर वीडियोस जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती थी सर, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है एडिटोरियल का, तो मैं उसको सर्च कर सकती हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे लिंक या मिल वीडियोस आ जाते जाते हैं हैं या? अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के। पूछा तो तुम्हें तीनों एसएसबी में तुमसे करंट अफेयर्स के ऊपर एम्फेसिस हुआ था कहीं पे? तीनों में, मतलब नॉट वन रेकमेंड हुआ उससे नहीं, तीनों में?
हाँ सर, फर्स्ट एसएसबी में उन्होंने डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, डिफेंस से रिलेटेड, हमारे You remember that? नेबरिंग कंट्रीज से Okay, रिलेटेड, the इंडिया relationship. चाइना, इंडिया पाकिस्तान, यस सर. Okay, okay, okay. And sir, because it was related to Air Force, it was after entry, तो Air Force से related भी questions. Okay, so how did you prepare for your defense related knowledge? क्योंकि तुम नेवी के लिए भी जा चुके हो, एयरफोर्स के लिए गए हो, तो डिफेंस रिलेटेड स्पेसिफिक कहाँ से अपडेट किया था? तो डिफेंस रिलेटेड सर, इंटरनेशनल रिलेशंस से मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था अपने आप को, थोड़ा इंटरेस्ट लिया था, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग कैसे रिलेशंस पास्ट में रहे हैं और कौन से इवेंट्स रहे हैं, कौन से वॉर्स रहे हैं, कैसे वो अभी करंट सिचुएशन को इफेक्ट करते हैं, Okay. और रिलेशंस अभी कैसे हैं, और कैसे डायनामिक्स चेंज होता है यूएसए एंड इंडिया के रिलेशन से एंड डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशन से. सो बेसिक लिंक्स मैंने अपने माइंड में बिठा लिए थे कि ऐसे लिंक्स हैं, अगर ये इफेक्ट होगा तो ये इफेक्ट होगा, फिर ये इफेक्ट होगा, तो ऐसे सब बेसिक मैंने अपने आप को क्लियर रखा था. Okay, now let's come back to how did you come to know Air Force UP videos? That's my first question, and then I'd like to know ki, in what way the experience at Air Force UP went through 2 weeks, and I remember your entire thing. मेरे पास अभी भी तुम्हारा psychological response, GTO का structure analysis सब पड़ा हुआ है. तुमसे बात करने से पहले मैं देख रहा था क्या किया है and all that, ना, just to get a feel. तो तुम्हें how did you come across Air Force UP videos, and what made you choose this? What was the difference did you find in terms of videos of other institute जहां से तुमने पहले 2 बार किया था और इधर में प्रोसीजर तो उधर भी इधर वो भी सेम है, इधर भी सेम है. Yes, sir. And another question I like to ask is, immediately after you finish you ask Kanak to join this. Yes, sir. And Kanak was to go for NCC special entry, but I came to know that she could not go because of some kidney stone problem and all that. She went through a small surgery. But उसको तुमने composite batch SML plus Air Force UP कराया, but खुद तुमने Air Force UP only किया, मतलब only the SSB. Yes, so why that kind of a thing? And पूरा थोड़ा बताओ मेरे को क्या experience है? Yes, sir. So actually, I can say it, sir, it was coincident. I was searching through some video and पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड मैं सर्च करती, क्योंकि सेकंड से मैं स्क्रीन आउट हो गई थी, तो मैं आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग कि कैसे हम टैच स्टोरीज को इन डेप्थ एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि पीपीडीटी के थ्रू वहां पे मेरा स्क्रीन आउट हुआ था, तो आई वाज एनालाइजिंग माय स्टोरीज. तो आई केम अक्रॉस वन ऑफ योर वीडियोस, एंड उसमें सर आपने एसएसबी के प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया था, एंड यू आल्सो टुक हेल्प ऑफ अ बुक, so 7 habits of highly effective people. Correct. So, yes, sir. So I was currently at that point I was reading that book only, and I found it very different, very solid, and substance है उसमें ऐसा काफी. And so मैंने बुक में बोल रहा हूँ, वीडियो में बुक तो डेफिनेटली सब्सटेंस वाला है. वीडियो में आपने वीडियो में उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो मेरे माइंड में लॉजिकली सेट हो गया, हाँ, कि ऐसे हम यूज कर सकते हैं एसएसबी में अपने, क्योंकि सर मैं पढ़ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, बट वो इफेक्टिवली एसएसबी में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इनफैक्ट मैं अभी आजकल वो एक कम्युनिकेशन स्किल के नाम से पीपल आर रीडिंग बुक्स, बट दे आर रीडिंग बुक्स सो दैट दे कैन से कि सर आई हैव रेड दिस बुक. मतलब इसलिए बुक पढ़ रहे हैं ताकि वहां जाके बोल दे मैंने 3 बुक पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उस बुक को पढ़ के उसमें से 1-2 चीजें अपनी जीवन में इंप्लीमेंट करो, इंटीग्रेट कैसे करो. सो ऑल दोस बुक्स आर वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द पीपल रीड दैट यू कैन विंग, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, विंग्स ऑफ फायर, और तुमने जो बोला स्टीफन कोवे का 7 हैबिट्स. और द प्रॉब्लम इज सिर्फ पढ़ते हो, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, दैट एप्लीकेशन इज मिसिंग. तो उस वीडियो में जिसको तुम रेफरेंस बोल रहे हो, मुझे नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक उसका नाम क्या मुझे पता नहीं, राइट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी ऐसे कुछ है. हां सर, तो यही बताया कि वो उसमें आई थिंक द चैप्टर दैट यू आर रेफरिंग इज बिगिन विद द एंड इन माइंड. यस सर, यस सर. With the end in mind. Yeah. कैसे हम रिकमेंड अपने आप को. First chapter is being proactive, second is begin with the end in mind. Yes, sir. End is आपको एसएसबी जाना, ले पहुंचना, मैं आजकल बोलता हूँ. Beginning is कन्याकुमारी. Now the whole process is, if you don't start this journey, how will you reach ले? और वहां के बिगिनिंग में लाइक यू सेड की कार बाहर से चमका दिया, हाँ सर, बाहर से पॉलिश कर दिया, एकदम बढ़िया कर दिया, अंदर इंजन में काम नहीं कर रहे, ब्रेक काम नहीं कर रहे. So that's a faulty approach to training. I don't know, पता नहीं तुमको उससे क्या समझ में आया. सर मतलब पकड़ में आई मेरे को कमी कि यही सुपरफिशियल जो मैं तैयारी करी थी इतनी सुपरफिशियल नहीं है, ये काफी डेप्थ मांगती है, काफी एनालिसिस मांगती है. तो उस पॉइंट तक, क्योंकि फर्स्ट एसएसबी और सेकंड एसएसबी के बीच में से 6 महीने का गैप हो गया था, तो काफी एनालाइज करा था मैंने. When was that second SSB? First was in January, second was? So September.
मतलब वो कोविड के टाइम में ही था तो सेकंड कोविड के टाइम में था। यस फर्स्ट सर, वाला बिफोर कोविड था, सेकंड एंड थर्ड वाज ड्यूरिंग कोविड। यस सर, ओके, ड्यूरिंग फिर कोविड। व्हाट चेंजेस डिड यू मीन? वो वीडियो से फिर क्या किया, वीडियो एयर फोर्स का वो देख के? यस सर, आई रियलाइज मैंने और वीडियोस देखी सर, फिर बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने। मेरे को ये पता चला कि सर जैसे बाकी कोचिंग मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट बाकी कोचिंग में जो मैंने कंटेंट देखा था वो मोटिवेशन तो था, बट दैट वाज नॉट, दैट वाज अ बिट सुपरफिशियल मोटिवेशन, मतलब कि आपको ये करना है, बाहर से चीजें चाहिए। बट जो रियल मोटिवेशन होता है वो अंदर से आता है, थ्रू स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड माइंड की अंडरस्टैंडिंग की हम हमारा माइंड कैसे काम करता है, एंड थ्रू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की हमारा जो कैरेक्टर है उसको जो एनर्जी मिल रही है फ्रॉम वेयर इट्स गेटिंग, हायर पर्पस होता है। या तो सर and so you are touching those points in your videos, which is very very important for youth, because they can easily get distracted by बाहर का ग्लैमर जो है, चमक रहा है सब। लेकिन सर ऐसा नहीं है, अंदर का कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उतना ही टाइम लगता है और चैलेंजेस लगता है। तो मुझे एज अ गाइड सर दिखा मेरे को FOSOP चैनल में। तो मैंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को कि आई वांट टू जॉइन दिस, एंड आई टुक फीडबैक फ्रॉम सम ऑफ योर स्टूडेंट्स कि मेरे को दोनों में से कौन सा लेना है, SML लेना है या SSB का कोर्स लेना है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तब। थर्ड SSB से पहले मेरे पास कुछ 4 वीक्स का ही टाइम था। तो मैंने सोचा सर SSB का अगर मैं लूंगी तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम इंट्रोस्पेक्शन के लिए बच जाएगा बिफोर गोइंग टू SSB, और फ्रेश भी रहेगा जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है अपने बारे में थ्रू योर गाइडेंस सर। तो वो रहा इफेक्टिव सर, आई गॉट रिकमेंडेड। No, that's okay. Recommended तो ठीक है, that's the end result है ना, कर्म किया Yes, sir. फल मिलेगा। मुझे ये बताओ, in terms of the training that you went through that, I keep saying कि 500% clarity and all that, मतलब वो तो मैं बोलने के लिए बोलता हूँ, Yes, because sir. after all I have to market, but in terms of you as a user of that Yes, sir. module, did it bring you certain degree of clarity which was not Yes, there in sir. the first 2 attempts? Yes, sir, I would like to speak about it. So जैसे सर फर्स्ट वीक में यू टच साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड सेकेंड वीक में GTO टास्क जो होते हैं हमारे एंड उनका सिग्निफिकेंस। सो फर्स्ट वीक में व्हेन आई वाज राइटिंग स्टोरीज एंड व्हेन यू वर एलैबोरेटिंग, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मेरा ये परसेप्शन था कि वी हैव टू स्किप द नेगेटिव पार्ट, मतलब उसको नेगेटिव को मैनिपुलेट करके उसको पॉजिटिव साउंड करा दो कैसे भी करके। Yeah, that's okay, But because it's not your problem. That's the way it has been conveyed. yes sir, डेड बॉडी को ड्रामा बना दो, नेगेटिव मत लिखो, पॉजिटिव कर दो। तो नेचुरली यंग माइंड लाइक यू जब वो सुनेगा पीपल फ्रॉम अथॉरिटी लाइक अस में से, तुम्हें लगा यही होता है। yes sir. So because before that I did not have that confidence कि मैं नेगेटिव को लिखूंगी तो क्या ये सही रहेगा। बट सर मतलब मैंने जब उसका सिग्निफिकेंस समझा कि दे आर ट्राइंग टू नो अबाउट अस, वो स्टोरी एक स्टिमुलस है, वो जो पिक्चर शो कर रहे हैं वो दैट्स अ स्टिमुलस एंड दैट्स गोइंग टू ट्रिगर समथिंग इन आवर माइंड, एंड जिसके पास्ट के पैटर्न्स और पास्ट के बिहेवियर्स एक्सपीरियंसेस वो ट्रिगर होके बाहर निकलेगा, तब पता चलेगा कि हु इज दिस पर्सन इन रियलिटी। इससे सबकॉन्शियस पार्ट है सर हमारा 90% एंड 10% इज कॉन्शियस। सो उसमें से आएगी स्टोरी, एंड देन आई रियलाइज कि ओके दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड सर मैंने नेगेटिव पार्ट को भी लिखा, मतलब मैंने एनालाइज किया कि दिस इज नेगेटिव एंड हाउ आई हैंडल नेगेटिव सिचुएशंस इन माय सराउंडिंग्स व्हेन आई फेस देम। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं दैट आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रोथ। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सो वी कैन नो सो मच अबाउट आवरसेल्व्स, हमारे बिलीव्स। कॉन्फ्लिक्ट इज पार्ट ऑफ लाइफ अनमोल। कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में हर समय होता है, हर समय, है ना। मतलब राइट नाउ आल्सो अगला क्वेश्चन मैं ये पूछूं नहीं पूछूं, देन आई हैव टू टेक अ डिसीजन, लेना ही नहीं है। टुमारो व्हाटएवर, लाइक तुमने कहा कि मतलब फॉर एग्जांपल A4 में मैं SML लूं या नहीं लूं, या ओनली ये, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर छोटा भी आएगा बड़ा भी होगा। सो इट इज नॉट नेगेटिव को अवॉइड करना, पॉजिटिव को वो करना। नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, सिचुएशन इज अ सिचुएशन, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। सो अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन है जैसे डेथ है, वी एक्सपेक्ट यू टू हैंडल डेथ, वी एक्सपेक्ट यू टू हैंडल। देखो कोरोना में कितने लोगों का क्या क्या हो गया। केरला में माय मदर्स मतलब जो मेरे मम्मी के साइड से जो घर है, उसके घर में अभी एक 10 साल के बच्चे का मम्मी पापा और उसकी बड़ी बहन तीनों खत्म हो गए कोरोना में। नाउ द चाइल्ड इज अलोन। तो क्या उसको मतलब रिश्तेदार देख रहे हैं, बट द चाइल्ड का लाइफ इज अ स्ट्रगल। सो इट इज इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन से सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसको हैंडल ही करना पड़ेगा ना। अभी बच्चा छोटा है। सो
अवॉइडिंग नेगेटिविटी जो है, इट इज नॉट लीडरशिप स्किल, इट इज एक्सेप्टिंग दैट। तो भगवत गीता में जो पढ़ा और जो तुमने एसएसबी में किया, वो दोनों थोड़ा सा क्या हो गया, सर अलाइन हो गया, अलाइन पहले नहीं हुआ ना। पहले नहीं हुआ था ये सर। कैन यू बी लिटिल स्पेसिफिक कि किस तरह से ये आया तुम्हारे सोच में कि अगर कोई नेगेटिव इवेंट दिख रहा है उसको अवॉइड करने से स्टोरी अच्छा होता है, ये किस तरह के, मतलब आई डोंट वांट टू टेल यू द सोर्स कहां से आया, बट कैसा वो था जिसके कारण ऐसा माइंडसेट बन गया? तुमने जो भी जहां से भी प्रिपेयर किया था, वो ऐसा क्या कम्युनिकेशन था जिसके कारण मन में ये आया, अरे इसको हटा दो? यस सर। सो क्योंकि सर जैसे मैंने OLQs भी देखे हैं और जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो उसमें किसी ने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये काफी बच्चों की, मेरे साथ काफी कैंडिडेट्स हैं और मैंने जिनके कांटेक्ट में आई हूँ, काफी लोगों के कांटेक्ट में आई हूँ, एंड सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो उनके एक्सपीरियंस से भी मैंने सुना कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर वीकनेस, मतलब वीकनेस को कहीं ना कहीं दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि व्हाई शुड आई से दिस पॉइंट, कि डिसिप्लिन से रिलेटेड है, प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड है, इमोशनल immaturity से related है, there are so many financial stresses are there in the family. What if I say will somebody judge me? तो कहीं ना कहीं जजमेंट का उन्हें लगता है कि इंटरव्यू में जज ना करें। नहीं मतलब वो एक बहुत गलत माइंडसेट बन गया है। अगर फॉर एग्जांपल अनमोल, सपोज तुम्हारे पिताजी रेलवे में है, उसकी वजह अगर मान लो तुम्हारे पिताजी एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से थे, या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने से प्रॉब्लम नहीं है, बट मान लो इकोनॉमिकली ऑल्सो थोड़ा से एक है ना फाइनेंशियली कमजोर थे, इसमें तुम्हारी गलती है? नो सर, तुम्हारी तो नहीं है। और उन हालात में अगर तुम एक ग्रेजुएट बन के, तुम एक रेस्पॉन्सिबल बच्चा बन के वहां पे जाते हो, आई थिंक यू आर बेटर देन ए पर्सन हु इज फ्रॉम अ फाइनेंशियली वेल ऑफ चाइल्ड। इमेजिन अनमोल, तुम्हारा बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से तुम हो, उसी उम्र के एक और लड़की है जो कि फार्मर बैकग्राउंड से, शी आल्सो परफॉर्म्स वेल इन हर स्टडीज, बट शी डज नॉट हैव हॉबीज एंड ऑल। अंग्रेजी कमजोर है बिकॉज वो गांव में रहती है, खेत में भी काम करती है, मम्मी को किचन में भी काम करती है, घर में भाई बहन को भी करती है। And but your achievement or her achievements are by and large same. Who is a better person, you or that girl? so that girl. That girl, because तुम्हारे पास फेवरेबल कंडीशंस है, yes sir, उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन में होके हर एबिलिटी टू स्ट्रगल इज मच ग्रेटर देन हर। उस लड़की को अगर एकेडमी में चला गया, यू पुट इन एनरिच एनवायरनमेंट, हर परफॉर्मेंस विल गो वेरी वेरी हाई। तो ये बहुत बड़ा गलती है। आज का ही एक वीडियो मैंने डाला है, इस लड़के को, उसका नाम भूल गया, वो बोलता सर पहले, इससे पहले उसको डर लगता था सर, मेरा जो मार्क्स कम थे पहले, उसको लेके मैं डरता था। मैंने कहा क्यों डर रहा है यार, गलती किया तो बोलो ना जाके गलती किया है। बट व्हाट यू शुड डू इज कि गलती किया तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको करेक्ट करना है। सो व्हेन यू गो, यू आर ए करेक्टेड वर्जन ऑफ योर पास्ट। yes sir, योर पास्ट शुड नॉट डिफाइन यू। yes sir, Your past should not define you. What should you do is analyze your past, identify क्या गलतियां हो रहा है, उन गलतियों को एक्सेप्ट करो। Don't put it on others कि मेरा कोरोना हो गया था, मम्मी बीमार हो गई थी, भाई पढ़ने नहीं देता था। उसके बजाय में क्या करो, acknowledge you made mistake, show the courage। अगर आप इंसेप्शन के स्टेज में एसएसबी में जाके अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो क्या ऑफिसर बनने के बाद करोगे? यू मस्ट हैव द मॉरल करेज टू एक्सेप्ट इफ यू हैव डन ए मिस्टेक, एंड यू मस्ट आल्सो हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू करेक्ट इट। yes sir, A mistake when repeated, then it's an habit। तो ये एक बहुत फॉल्टी, ये बहुत बड़ा एक फॉल्टी ट्रेनिंग का इमेज बन गया कि अपनी गलतियों को छुपा दो, जज करेंगे। इनफैक्ट अनमोल, मैं तो ये बोलूंगा, तुमने गलती छुपा के अगर पकड़ा गया, देन यू विल बी जज्ड। yes sir, क्या बोला मैंने? पकड़ लेते हैं वहां, पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद देन व्हाट फेस यू हैव, सॉरी सर मैं झूठ बोल रही थी, मैं वो, अरे देखो अनमोल और बाकी बच्चों को, रेकमेंड होना है, लेकिन रेकमेंड होने के लिए छटपटाना नहीं है। रेकमेंड होने के लिए छटपटाना नहीं। वो थ्री इडियट का वो डायलॉग नहीं है, 16 हड्डियां टूटने के बाद आया ये एटीट्यूड। आप रखो अपनी नौकरी, मैं रखता हूं अपना एटीट्यूड। अपने दम पे ऑफिसर बनना है। एंड इट्स ओके इफ आई मेड अ मिस्टेक, वेयर इज द प्रॉब्लम? ठीक है, हो गया, गलती हो गया, बट आई हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट। I acknowledge I have made a mistake and I have also have the courage to correct it। ये mindset बहुत जबरदस्त चेंज करना है। I am very happy अनमोल इस बात को तुम लेके आए। चलो आगे बोलो फिर। हाउ डिड आई कीप टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस, ये क्या समझ में आया? आई टॉक अबाउट टू काइंड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस। वन इज within the psychological test, within the G2 and within the interview, and then I talk about amongst the technique।
जिसमें तुमने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें ही लग रहा था कि तुम्हारा साइट टेस्ट कहीं जा रहा था, जीटीओ कहीं जा रहा था. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? उसको मैं बोलता हूँ कर्मा वाचा मानसा जो है वो गंगोत्री, एक ही गंगोत्री की 3 धाराएं हैं और उस तीनों धारा में गंगोत्री का क्वालिटी दिखेगा. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दैट, अनमोल? Yes, sir. So I analyzed कि so जो मैं स्टोरीज लिख रही हूँ उसके थ्रू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर, मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ रियल लाइफ में, हाउ आई हैंडल सिचुएशंस. वही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में दे आस्क उसको घुमा फिरा के, एंड एसडी में दे आस्क इट कॉन्शियसली, मतलब मैं कॉन्शियसली मैं लिखूंगी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो ये और फिर से पीआईक्यू वो पूछते हैं. पीआईक्यू में उन्हें मेरा एकेडमिक्स पता चलेगा. They'll know what I'm investing my time in. मतलब मैं जो अपनी hobbies and interest, that's a time that I'm investing. So hobbies और interest में लोग confuse हो जाते हैं कि जब free time में करते हैं, but I feel so hobbies are very very important because they add a flavor to your personality. They tell you who you are in your मतलब you are taking some time out to figure out who you are through those hobbies. So they are very important. And so interview mein what we are speaking is definitely getting impacted by what I have already written in my psych tests and SD and PIQ. And so GTO mein that's the physical that's not the physical fitness part. Actually वो group की performance जो कि कहीं ना कहीं वो psych test में आ गई होगी और PIQ में भी आ गई होगी और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी आ गई होगी कि सर फ्रेंड्स के साथ में कैसे बिहेव करती हूँ, वो ग्रुप में है. मैं यहाँ पे अनमोल सॉरी थोड़ा सा जस्ट इंटरप्ट यू. मतलब देखो तीनों टेस्ट में टेस्ट देने वाला व्यक्ति एक ही है, आप कैंडिडेट, यू अनमोल ही साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रही है, अनमोल ही जीटीओ दे रही है, अनमोल ही इंटरव्यू दे रही है. बट टेस्ट का नेचर में थोड़ा सा फर्क है. टेस्ट का नेचर मतलब द नेचर ऑफ टेस्टिंग इज डिफरेंट बट द पर्सन बीइंग टेस्टेड इज सेम. साइकोलॉजिकल टेस्ट में बोलते हैं कि इट इज दे आर टेस्टिंग योर स्टैटिक पैटर्न ऑफ पर्सनालिटी. स्टैटिक का मतलब क्या है? व्हेन अनमोल को आइसोलेट करके वो सारे टेस्ट देते हैं टीएडी डब्ल्यूएटी, तो अनमोल को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा. शी इज थिंकिंग, शी इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन, सब खुद ही कर रही है और खुद ही लिख रही है. देयर इज नोबडी इंटरफेयरिंग यू, neither the psychologist nor the candidate sitting next to you. So it is called testing in isolation. In isolation. इसका मतलब है अगर एक पिक्चर आया, whatever you write, everything has come out of your मानसा. So उस टेस्ट का नाम है मानसा. जीटीओ में बोलते हैं it is testing your dynamic pattern of personality. क्या बोलते हैं? It is testing your dynamic pattern. What does they do? इसी अनमोल को जिसने अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया उसको उठा के 9 बच्चों के बीच में 10 के ग्रुप में डाल दिया. नाउ देयर इज अ डिफरेंट, वहां पे जीडी है, पीजीटी है, वो है, टास्क है. यहां पे यू हैव टू फंक्शन एज पार्ट ऑफ ए ग्रुप. तो यहां पे भी अगेन इट इज टेस्टिंग इंडिविजुअल, दैट इज यहां पे भी अनमोल का ही टेस्टिंग है बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रुप. वहां पे इन आइसोलेशन. यहां पे अनमोल का ग्रुप में काम करने की क्षमता देख रहे हैं. इसे हम बोलते हैं फंक्शनल कैपेसिटी. क्या बोलते हैं? फंक्शनल. और इस फंक्शनल कैपेसिटी के आधार पर हर इंडिविजुअल का, अनमोल का दूसरा को अलग 2 लेवल निकाल रहे हैं. पहला बोलते हैं प्रेजेंट लेवल, मतलब इस ग्रुप में आज एसएसबी में अनमोल कैसे परफॉर्म कर रही है. दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस या एक्चुअल. इसके अलावा एक और लेवल है जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड लेवल. एक्सपेक्टेड मतलब जितनी अपेक्षा है. There will be invariably a gap between what you perform and what is the expectation. So there is a gap. Let's call it delta. Now, after the GTO series is over, what do they do? What is the expected level? And where was Anmol performing? This gap. फिर देखते हैं कि इस गैप को ट्रेनिंग के थ्रू भरा जा सकता है या नहीं. दिस फैक्टर इज कॉल्ड ट्रेनेबिलिटी फैक्टर. ट्रेनेबिलिटी. और इसके मुताबिक निकालते हैं प्रिडिक्टिव लेवल. प्रिडिक्टिव मतलब कि अनमोल अगर सेलेक्ट हो गई, आज 22 साल की लड़की है, इसको एकेडमी में मान लो 1 साल की ट्रेनिंग है और इसका एज इतना, इसका ओआर इतना, इसका प्रेजेंट लेवल इतना है. क्या ये लड़की का ये जो गैप है इन ऑल डोमेन्स, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड द वैल्यू लेवल, व्हाटएवर, जो 4 फैक्टर्स है, क्या इस गैप को इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भरा जा सकता है या नहीं? अगर उन्हें लगता है कि भरा जा सकता है, he will recommend you. Yes, sir.
अगर लगता है मुश्किल है, ही विल नॉट रिकमेंड यू। तो ये जो ट्रेनेबिलिटी की बात बोले, ट्रेनेबिलिटी इज व्हाट, तुम्हारा प्रेजेंट का परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन, उसके गैप को भरना। तो ट्रेनेबिलिटी के 4 फैक्टर्स है, बाकी सब भी सुन लो अच्छे से। एंड अनमोल को तो अभी खैर शी इज एनीवे गोइंग फॉर द ट्रेनिंग, तो इट इज ओनली एजुकेशन फॉर। इस ट्रेनेबिलिटी में 4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आई वांट ऑल दोस पीपल जो यूट्यूब में देख रहे हैं, इस चारों फैक्टर को लिख के मुझे बताना क्या समझ में आया। क्या 4 फैक्टर्स? अनमोल का प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस एट द एसएसबी एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है, इस गैप को भर सकते या नहीं भर सकते, ये तीनों लोग 4 फैक्टर से निकालते हैं। जीटीओ 3 फैक्टर से, मैं चारों फैक्टर बताऊंगा। सबसे पहले है अनमोल का ओएआर क्या है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। सो अ हायर ओएआर मींस योर एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स विल बी बेटर। सो अगर आपका OAR 1 है या OAR 2 है, डेफिनेटली योर ट्रेनेबिलिटी इज कंसिडर्ड हायर, क्योंकि आपका बेसिक इंटेलिजेंस ज्यादा है। सो दिस इज अ रीजन फॉर ऑल ऑफ यू टू डू वेल इन योर OAR टेस्ट। सेकंड इज अनमोल का एज कितना है। अब इन दिस केस अनमोल इज 22 इयर्स। एनडीए वाले का एज कितना होता है? 16, 17 साल, 19 साल। टीएस वाला सेम, सीडीएस वाला 25, अनमोल 22 है। टीजीसी वाला 27, सर्विस एंट्री 27, 32, 42 टीए वाला। इसका मतलब जितना आपका एज ऊपर होगा, उतना आपको ढालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो द मोस्ट फ्लेक्सिबल बंदा विल बी एनडीए एंड 10+2 टीएस बिकॉज ऑफ द लेसर एज प्रोफाइल। इसका मतलब जैसे जैसे एज ऊपर जाएगा, आपका रिलेटिव ट्रेनेबिलिटी फैक्टर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। थर्ड है आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस। प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस मतलब एसएसबी में आप किस लेवल पे आज परफॉर्म किया है। सो अनमोल का जीटीओ में प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस ये है, एक्सपेक्टेड ये है। ये गैप जितना कम होगा, ये गैप जितना कम होगा, उतना आपका ट्रेनेबिलिटी बढ़ जाएगा, बिकॉज गैप ही बहुत कम है, मतलब गैप भरने का एफर्ट कम है ना। सो ओके, फोर्थ फैक्टर भी बताता हूं, उसके बाद बताता। चौथा फैक्टर है आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना है। तो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग ड्यूरेशन किसका? 10+2 टीएस का। क्यों? 5 इयर्स। उसमें 4 साल का इंजीनियरिंग और 1 साल का, तो टोटल 5 साल वो है। एक तो उसका एज कम और ट्रेनेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो नेचुरली मोल्डेबिलिटी इज वेरी हाई। नेक्स्ट इज एनडीए 4 इयर्स। सो एनडीए और 10+2 इयर्स को क्लब कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों का एज प्रोफाइल सेम है। तो एनडीए एंड 10+2 टीएस का एज सबसे कम और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सबसे ज्यादा, और उनका पर्सनालिटी फॉर्मेटिव इयर्स में, दे आर टीनेजर्स। यू हैव ऑलरेडी बिकम एन एडल्ट, 21 हो गया, टीन 19 के बाद 20 हो गया, तो यू आर इन द अर्ली एडल्टहुड। तो यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द टीनेजर, बट दे आर टीनेजर्स। सो टीनेजर का तो पर्सनालिटी मोल्डिंग बहुत आसान है। तो 4 फैक्टर्स बोला, ओएआर, उसके बाद आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, आपका एज, एंड आपका दूसरा कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। These are the 4 factors which contribute and which becomes a deciding factor कि आपका ट्रेनेबिलिटी कितना है। अब इसमें 2 फैक्टर आपके कंट्रोल में, कौन कौन सा? OAR। अच्छा OAR लाना आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ये आपके हाथ में। सेकंड इज आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस आपके हाथ में। प्रेजेंट लेवल, आप अपना, अनमोल तो अपना एज कम कर सकती है? नहीं कर सकती। ट्रेनिंग ड्यूरेशन बोल सकते हैं, सर मैं ट्रेनिंग ज्यादा करने को तैयार हूं, मेरा ट्रेनिंग 1 साल की जगह 2 साल कर दो, नहीं कर सकती। सो 2 फैक्टर्स यू हैव नो कंट्रोल, योर एज यू हैव नो कंट्रोल, एंड योर ट्रेनिंग ड्यूरेशन यू हैव नो कंट्रोल एकेडमी में, बट द अदर 2 आर विद इन योर कंट्रोल। सो थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल, उसके ऊपर पूरा जोर लगाओ। हाई OAR स्टेज 1 में अच्छा करना, एंड प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस। प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस के लिए आपको आज आप प्रिपरेशन के नाम पे क्या कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट यू प्रिपेयर टुडे, that will become the basis how you perform in the SSB. So अभी आप ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सीखते रहोगे, या डेड बॉडी का ड्रामा बनाते रह जाओगे, या बी पॉजिटिव करते रह जाओगे, तो आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस ऊपर जाने की जगह नीचे चला जाएगा। Those of you are poor in communication skill, that's a major problem. जैसे अनमोल के केस में हर कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, एंड उसने शायद कॉलेज के टाइम में ही स्टेज पे चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग एसएसबी में जाके फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ते, तो नेचुरली प्रेशर आएगा। So communication skill, content, current affairs, problem solving skill, decision making skill, इन चीजों को जितना आप डेवलप करोगे, उतना आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस तीनों टेक्निक में ऊपर चला जाएगा। दैट इज वेयर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके कार की सर्विसिंग कर रहा है। आप बिना कार की सर्विसिंग किए कार को पॉलिश करके लेके जा रहे हो, लेकिन वो लोग बोनट खोल देंगे,
एसएसबी में 3 लोग बोनट खोल देंगे, तब आप क्या छुपाओगे? उसके अंदर फिर गधा बांध के रखा हुआ है. So I don't know, अनमोल तेरे को क्या समझ में आया? So Yes, sir. So actually, it happened in interview also. So they find a weak point, and then they circle. They move in a circle. So was asking questions, and after some time, he was asking the same question in a different manner. yes, So I was not able only to not catch it. only अनमोल डिफरेंट मैनर. वो क्या करेंगे, जब उनको जो भी चीज ऑब्जर्वेशन में आएगा वो उसको मार्क कर लेंगे, इमीडिएटली नहीं पूछेंगे क्योंकि वो माइंड इज अलर्ट. Yes, sir. अभी अभी बोला, वो क्या करेंगे, कहीं लेफ्ट राइट घुमाएंगे, अचानक उस पर आ जाएंगे. Yes, sir. Yes. एंड देन योर माइंड इज अनप्रिपेयर्ड, यू कॉट. तुम्हारे साथ भी हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. He was asking some questions. I realized that this is the same question. I mean, what are your biggest choices in your life? What are your toughest challenges? These are kind of similar questions. So I was confused ki whether I should tell something else or not. But I stuck to my answer. I stuck to the same point. He said, "This is the thing that has taught me so much. This is the point where I learned so much, and this has helped me in my growth." So I stuck to my answer, and then I think that was a Anmol, you came with me for training in the month of November. Yeah, or November or October में आया था, November. November. One thing that I noticed about you and I liked about you was the honesty with which information would flow. मतलब तुम्हारी बातों में I could feel कि उसमें बनावट नहीं है. बनावट मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? Yes, a manipulation. मैनिपुलेशन जो है वो ऐसे बोल रहे थे. आई डोंट नो हाउ डिड यू गो थ्रू द थर्ड एक्सपीरियंस. तुम्हारा थोड़ा सा स्पेसिफिकली थर्ड इंटरव्यू के बारे में बताओगे, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट यू हैड, बिकॉज़ लास्ट टाइम तो यू हैड अ माइंडसेट कि मेरे को अपना वीकनेस छुपाना है और अच्छा अच्छा बोलना है. इस टाइम क्या था? वाज देयर एनी शिफ्ट? So as you said कि जैसे वेट का एनालॉजी सर आपने यूज किया था कि वेट मशीन, वेइंग मशीन का. सर वेइंग मशीन मुझे चेंज नहीं करनी है, मुझे अपने वेट पे काम करना है. यस. So sir, I brought more clarity in my answers. So मैंने prepare किए answers. Prepare करना is important because that shows the amount of effort the candidate has put in and the amount of clarity that person has tried to bring in their answers and in their mind. So yes, sir, I prepared for the answers, and I also prepared while speaking. I prepared it in front of mirror or recorded the answers. Speaking मतलब आपने अपने CIQ के आंसर्स को ऐसे as if you are giving it to the interview, उसको स्पीक करके रिकॉर्ड किया. Yes, a verbal form. I recorded it in front of the mirror, so that brought some kind of confidence. Because even if the question is different, I can answer it when I know it. I can answer it confidently. I know the points. So this was one pointer that helped me in the interview. I was very chill and relaxed, and I was enjoying the interview. So I was even using different analogies. So जैसे college से पहले मैं एक कुएं का मेंढक थी. And then how I learned through different events. I came out of the well and I explored myself and I grew. And then so GTO mein, I was confident again. I was taking initiatives. I was not holding myself back. And more importantly, as I knew the significance of that GTO, so I was contributing intellectually. So जैसे you taught us the structures analysis, that helped me a lot and gave me a lot of confidence in the TGT tasks, because I observed that it was very easy. The solution was coming very easily to me. I was seeing the structure, I was observing it quietly, and then I was giving the solution. So I was able to give all the solutions of all the structures and all the tasks, and that helped me. That boosted my confidence for the coming tasks. ऐसा हुआ sir. And then so psyche में sir, it went smoothly. मैंने stories को observe किया. And what naturally came to my mind, I wrote it. मतलब पिछले बार की तरह कराटे का स्कूल नहीं खोला. नहीं. तो जनरल घर में क्या हो रहा है कि कोई सीन है, ये घर जैसा सीन लग रहा है कि घर में लोग बात कर रहे हैं और क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कैसे उसको कंक्लूड करा नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेटमेंट में. एंड सर SD एंड PIQ पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया था. मैंने SD अपना प्रिपेयर किया था पहले. सर मैंने जैसे पॉइंट्स होते हैं कि पेरेंट्स क्या ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट पेरेंट्स ऑब्जर्व इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट फ्रेंड्स ऑब्जर्व, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम टीचर्स एंड व्हाट आई सी इन माई सेल्फ. तो ये मैंने फीडबैक भी लिया था काफी फ्रेंड्स से. अपने मैंने फीडबैक लिया था अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, एंड सर अपने टीचर्स से भी. सर आई took the feedback and that helped me to frame the SD. Okay. So the major point that I did was I wrote the examples.
कि एग्जाम्पल मतलब अगर आप कोई स्ट्रेंथ बोलते हो या वीकनेस बोलते हो उसका एविडेंस क्या है, मतलब उसका यस सर, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? यस सर, बिल्कुल, ओके, क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं हो जाता है, स्किप हो जाता है इंटरव्यू में बिल्कुल, या कहीं स्किप हो जाता है, बट हाँ, स्किप ना करने के लिए मैंने उसे अपने एसडी में इंक्लूड कर दिया था एब्सोल्युटली, कि मतलब कि जैसे किसके किसके पेरेंट्स, आधार पर ये मैं बोल रही हूँ। हाँ सर, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट है, कैसे मैं सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, मेरे एब्सोल्युटली। सिबलिंग्स कैसे समझते हैं कि मैं उन्हें मेंटोर करती हूँ, एग्जाम्पल हम्म फ्रेंड्स का कोई एग्जाम्पल, ऐसी टीचर्स का अपना पर्सनल एग्जाम्पल, हम्म। सारे एग्जाम्पल मैंने ओके उसमें भर दिए थे। ओके ओके। अनमोल, मुझे बताना स्टेज वन जो लास्ट जो रेकमेंड हुआ था जिसमें थर्ड एट में, हाउ मेनी नंबर पीपल वर देयर फॉर द आईनेट एंट्री स्टेज वन के लिए, और कितना Yes, क्लियरेंस? sir. So actually, that was a absentee batch. अच्छा, So there were around 50 to 60 people. 50 to 60 people फाइव that जीरो reported. फाइव जीरो सिक्स जीरो? So 60 was there. सिक्स जीरो। और Six. कितने स्टेज वन कितना क्लियर किया? So 22 people. 22 people. 22 पीपल के, एंड उसमें से कितने क्लियर हुए? So seven got recommended. 7 में पायलट एंट्री कितने थे, सभी? So I was no sir. हाँ, Pilot entry, for pilot entry, two were there. Me and one more गर्ल, friend of mine. So we went to give PABT. I cleared it. She was शी not डिड। able to clear that, but she was appearing for the ATC entry. अच्छा, एटीसी के So लिए। there were different इसका entries. मतलब 60 आए, 22 क्लियर, स्टेज वन क्लियर है, 22 में से 7 मेड इट थ्रू द एसएसबी एंड 2 वेंट फॉर सीपीएसएस एंड यू मेड इट, दैट अदर गर्ल डिड नॉट Yes, मेक इट बट शी वेंट फॉर एटीसी एंट्री। तो शी yes, विल sir. आल्सो, ऑल द अदर 7 विल बी जॉइनिंग। ये सबका मेडिकल हो गया क्लियर? So medical तो सर सबका clear हो गया था, but three of us have got the joining letter ओके, फाइन, from चलेगा। 7. ओके, हाँ सर. तुम्हारा सीआईक्यू से स्पेसिफिकली इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कुछ पूछा इस बार? आई जस्ट वांट टू नो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर, मतलब सीआईक्यू में Yes, जो भी sir. तुमने Yes, sir. लिखा, एनीथिंग स्पेसिफिकली दैट वाज आस्क्ड, और कहाँ पे तुम्हें ऐसा लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लूप में फंस गए, कहीं हुआ ऐसा? Yes, sir. It was very interesting, I can say. So PIQ में मैंने अपनी hobbies में mention किया था कि writing, डायरी राइटिंग? राइटिंग मुझे पसंद है. अच्छा, Yes, sir. हाँ हाँ पसंद in the sense it's a part of my daily routine. हाँ हाँ। I write diaries. So sir, he was asking different question, but they were similar कि आप क्या लिखते हो डायरी में, ऐसा क्या लिखते हो? Then I said sir, schedule लिखना, मैं schedule prepare करती हूँ. Every night I prepare schedule for the next day. So he stressed upon it. No, I'm not asking the schedule. I'm asking what you learn from it. अच्छा, What you learn from it. So I understood sir कि he is asking कि what kind of clarity diary writing gives and या जरा मैंने क्या सीखा. एक्सप्लेन, थोड़ा एक्सप्लेन करो तुमने कैसे उसको आंसर किया। सर मैंने इफ आई आस्क यू कि अनमोल तुम डायरी राइटिंग करते हो तो उसमें जो भी लिखते हो, व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट यू राइट एंड व्हाट डू यू राइट, व्हाई डू यू राइट एंड हाउ डज इट हेल्प यू? इफ yes आई sir. आस्क यू दिस, हाउ वुड यू आंसर इट? आई जस्ट वांट टू नो कि तुमने उसको कैसे आंसर किया। So in the basic form, I write what happened in the day, how I behaved, and why I behaved in a certain way. If I feel there are certain kind of emotions related to that event, I try to express it in the diary instead of venting it out in front of anybody else. I first write and express my emotions all in that diary. I learn about myself through those words what I've written, and so it also helps me in bringing some emotional maturity in my behavior, because next time when I'm in a similar event, I will be able to handle it properly with the help of my self analysis. So it's a very good way of introspection, and also it builds a kind of a objective, it kind of builds an objective understanding, Of an the objective situation. understanding of our behavior and patterns of our mind. So we become more calm and composed. When we know ourselves, we can know others, and the more we understand ourselves, the more we understand others, and situation can be handled in a better way. Since when you have been writing this diary writing? So diary writing, so I've been doing it for last 2-3 years. Yes sir. Any example where you behaved in a particular manner and in a similar situation you behaved differently and the source of that difference was your diary writing? So I can say it happened in many events, because so जब हम लिखते हैं तो it helps us in breaking a pattern, like a kind of a unconscious pattern, I can say. Like so किसी ने मुझे instigate किया, शायद instigate किया, तो I have written it why I got instigated. It's nothing about my personal, it's not my personal behavior. Why I got instigated is a part of
what happened is a part of other person's character and behavior. Mhm. So why I got instigated is related to my beliefs and my thought patterns. तो मैं analyze करूंगी सर मैं ऐसा क्यों believe करती हूँ, ये belief कहाँ से आया, ये मैंने believe कहाँ सुना, and detail में पीछे reverse engineering से कह सकते हैं इसे, उसे trace back करेंगे कहाँ से आया, कि ये कहाँ से आया, तो फिर एक पैटर्न ब्रेक होना आसान हो जाता है ऐसे ट्रेस बैक करके. Okay, fine. You said कि at some stage you were reading different kind of a book. उसके बाद you started reading this self-help books and all that thing, including Bhagavad Gita. Which are the other books that you have read, and any one book or reference that you'll say, and something that you could take from that and implement? Yes, so there are actually two books, Power of Now and New Earth by Eckhart Tolle. A New Earth. New Earth. I'm not aware of that. Huh? Yes, sir. So these are basically these are spiritual genre only, but they focus. So the Power of Now है book that focuses on present moment. Present में हम कैसे अपने mind को लाकर we can become conscious of our behavior and of our mind. मतलब जैसे सर माइंड काम कर रहा है, हम उसको पीछे से देखें कि ये सब चल रहा है माइंड में, कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे. तो आई लर्नड अ लॉट एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट फ्रॉम दैट बुक. और उसमें हेल्प मतलब कैन यू बी स्पेसिफिक, व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्प? स्पेसिफिक बताओ ना, मतलब ऐसे हवा में नहीं. तो जैसे आप कहते हैं सर रिस्पॉन्स होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी. तो सर एक इवेंट हुआ एंड देयर इज अ गैप बिटवीन कि हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट. तो दैट मोमेंट that gap can be used to take a space, be present and see कि हम कैसे react कर सकते हैं. वो एक choice हमें provide करता है वो moment. तो that presence of mind के लिए we need to practice it. वो सब एकदम से नहीं आता, ऐसे अचानक से नहीं आता. We need to practice that presence of mind. Correct. So from that book I learned how to be present. Okay. And help me. Now tell me one thing. Why did you ask Kanak to join, your sister to join both the composite batch? मतलब you yourself joined, and जिस तरह का तुम्हारा level of awareness है about your own self, है ना? Not because you cleared SSB, but you understand certain dynamics of the mind, why it works in a particular manner. You have a habit of diary writing, going back. So I think Kanak is your sister. She also must be doing all those things. So what made you decide कि उसको जाके दोनों कर दिया? So actually, sir, I also wanted to take SML at my time, but as I said, so time कम था. But मेरी sister जो है, she showed interest in SSB preparation and she was interested in taking some guidance. So instead of telling कि यार इतने सारे options हैं, so I knew कि this would be the best because SML में that is self management leadership. So उसमें बहुत सारे so I can say structure आपने. That's a structured guidance. What I have learned through books that you are guiding through bringing some clarity. Yes, sir. Modules through modules. Okay. So yes, sir. Kanak ne, she made a remark when I asked her. तो उसने बोला कि I can observe some changes in you, and I think you also mentioned I am observing some changes in her. What changes did you? Why did you make that statement? Not now, long back. Ki, sir, I can see some changes in Kanak. What made you say that? She started taking responsibility. I can say she started taking responsibility of her actions because before that she was in a I can say partially conscious of herself. So after taking that course she became more conscious. I can say पहले सर शायद 60 to 70% थी, उसके बाद 70 to 75% 70 to 80% वो conscious हो गई, ज़्यादा conscious हो गई. तो that definitely helps in our daily मतलब was it observed by you and your parents? फर्क दिख रहा? Yes sir, she was taking responsibility in simple things कि I can do that, I can get up early, I can do that, I can manage this. Okay, ठीक है. कनक, तुम्हारा अभी 27 जून को वो है, क्या बोलते हैं, एडमिशन है. What kind of activity are you doing? मतलब you're free actually, just waiting for. What activities are you doing to, mental preparation? All this happy smile will go once you reach the academy. So वो pressure हल्का सा feel तो हो रहा है. So besides your physical fitness, what activities are you undertaking right now in terms of your building physical capacity? Because anyway corona में तो there must be restrictions. गाजियाबाद में कैसा restriction होगा? हाँ सर, restriction है, lockdown है. What are you doing? What activities are you doing to keep yourself physically fit? So sir, I am. So there's a park nearby.
I am living in a society, so there's not much lockdown in my society. So I'm going to that park for daily running. So basically, apart from physical fitness, I am also working on my discipline. क्योंकि से वहाँ discipline बहुत ज़्यादा होता है, and discipline का mental strength से direct relation Yeah, है. I was The asking more because discipline. yeah, more than physical, you have to be mentally fit to endure whatever you want to go through. Yes, sir. You know, so it's going to be gruesome, and उसके लिए तुम्हें मतलब all this smile has to be sustained there. You know, बात Yes, sir. लगेगी, but दिल नहीं छोटा करना है. हाँ ठीक सर, है ना? जितना So रगड़ा उतना तगड़ा सर. yeah, जितना रगड़ा उतना तगड़ा. So all that is fine. So that mental strength, कि whatever has to go, you are not the first girl. There are so many people who have gone through it. So you will also go through it, है ना? वो देखा ना Wing Commander Abhinandan. Sorry, हाँ Major, सर. I'm not supposed to tell you. So more than That's physical confident. fitness, academy में more than physical fitness, it is going to be the mental fitness. Do you have it in you? Yes, ठीक sir. है ना? So I whatever little I know, I have found you a very balanced person. मुझे बहुत अच्छा लगता था तुमसे जब तुम्हारा फीडबैक वगैरह मिलता था. वेरी बैलेंस, बहुत अच्छा लगता था. और सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि तुम जो भी बोलते थे, you understand what are you speaking. है ना? Yes, sir. मतलब कम्युनिकेशन का पर्पस ही ये है कि यू एज अ ट्रांसमीटर यू शुड अंडरस्टैंड योर मैसेज बिफोर यू ट्रांसमिट इट टू द रिसीवर. सो बात मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारा. सो गॉड ब्लेस यू. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड आई एम श्योर यू वुड बी अ मोटिवेशन टू योर सिस्टर कनक, एंड तुम्हारा भाई का नाम क्या है? यशस्विन. Yashaswini. Yashasvi Agnihotri. Yes, sir. Yashasvi Agnes. So, and how's the response in your family members from Ghaziabad? So, तुम्हारा, I don't think you have a family relation in the armed forces. पहले है कोई? No, sir. No, sir. Totally civilian What background. was your reaction from your people around you, society So they were included? shocked. They were shocked. Yes, sir. They were shocked because it was very silent journey. मतलब I was preparing in the background Yeah. without any. Not much noise. Yes, sir. Action Yes, sir. speaks, eh? Yes, sir. तो अचानक एक So दिन वही. पता चला कि अचानक अनमोल से पता अग्निहोत्री चला. is becoming a pilot. Yes, How sir. is your excitement as far as pilot? देखो, आर्म फोर्सेस में यूनिफॉर्म पहनना ही बहुत बड़ी बात है. ऊपर से Yes, sir. तुम तो पायलट बनने वाली हो. So Sir, tell us how much you know about meteorological reconnaissance. क्या होता है ये reconnaissance? sir, maritime reconnaissance. Yes, sir. Maritime reconnaissance. Maritime, में sir. sorry. हाँ सर. हाँ, तो हाँ. सर MR entry is for girls and उसमें सर reconnaissance is basically surveillance of the seaside and navy का जो surveillance portion है, we'll be doing that as pilots with observers with us. So observer भी एक entry होती है, that is the, I can say, the watchers of the sea. They are called the watchers of the sea. तो ये लोग ये हमारे साथ ही with pilots we go for the surveillance. Which are the aircrafts maritime surveillance में reconnaissance में कौन सा यूज होता है? So the most basic one is a Dornier aircraft. थोड़ा बोलो उसके बारे में, कितना पता है? Let's see. सर अभी बेसिक तो मुझे मैरीटाइम रिकॉन्सेंस के बारे में पता है, बाकी I'll come to know there. चलो, डोंट वरी. चलो, वेरी नाइस. तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा अनमोल, एंड God bless you, and I'm sure you'll do well in the academy also with the kind of clarity that you have. This clarity Yes, will sir. definitely. I'll try my best. No, you don't have to try. You have to do it. There's no try. There's no Yes, sir. try. I'll give You have my to do best. it. Yes, sir. Yeah, you Definitely. give your best, and with the kind of person you are, and whatever little I have understood through our interaction, and subsequently, your values are in place. You know what are you speaking. You know what are your head is very clear, and God bless you, Anmol. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके. And Thank you, sir. very proud of you, and I'm sure your parents also must be feeling very proud, and your brother and sister will also follow your path. And keep Yes, in sir. touch and become a good pilot in the Navy and serve the country. God bless you. Thank you so much, sir. God Thank bless you so much. God bless you. Thank you. Jai Hind, sir. Thank you.